Today we learn about inheritance of one gene. Inheritance of one gene. You already know one gene is responsible for one character. One character, according to Mendel, that is gene is the factor. And one gene have two alleles, two alternative form of the same gene is called allele. तो आप देखिए, अब हम देखेंगे inheritance of one gene, how the genetic character transfer from parent to their offspring, and only we see here that is the one gene inheritance, in which I have already described you, that is the earlier video, that is law of dominance. Law of dominance, according to law of dominance, if we cross one pair of contrasting character, then of one generation only one character appear. The character which appear is called dominant character. This is the first law of the Mendel, law of dominance. Suppose that is we cross tall plant with dwarf plant, then what happen? Tall for capital T, and dwarf for small t. Then of one generation all plant is tall. You see here, all plants are tall. This is the law of dominance. But you see here, all plant tall. How we can identify that these tall plant is that is the homozygous or heterozygous? This is the two form of the tall. This is the tall, also tall, same plant, and all these is also tall. How we can identify that these all tall plant is homozygous tall or heterozygous tall? So we cannot identify, or how Mendel identify these, that plant is hybrid tall. This is called hybrid tall. Hybrid tall. And this is called pure tall. This is the pure tall. How we can identify that these tall is pure tall or hybrid tall? How Mendel identified these that is the tall plant. If you see everyone tall, but this is called phenotype. Phenotype is the tall, all plants are tall. But we identify genotype. Genotype means the genetic construction, may be pure tall or may be hybrid tall. So how we can identify this? So we have to a special type of cross by which we can identify these plants are tall or dwarf. That is called test cross. By which Mendel identified that all plants are hybrid, tall, phenotypically tall. देखने में सभी टाल थे, लेकिन यह प्योर टाल नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल दीज आर डोमिनेंट कैरेक्टर टॉलनेस टू ड्वार्फनेस. तो प्योर टॉल नहीं था यह टाल. इसका जीनोटाइप, फिनोटाइप तो टॉल था. फिनोटाइप में क्या था? टॉल. बट जीनोटाइप में क्या लिखेंगे? हाइब्रिड टॉल. नो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस. सो हाउ वी मेंडल आइडेंटिफाई, मेंडल ने यह कैसे जान लिया यह प्लांट जो है यह हाइब्रिड है कि प्योर है? इसके लिए उन्होंने क्रॉस कराया, उसका नाम है टेस्ट क्रॉस. अब देखें हम लोग टेस्ट क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस क्या है? यह पहचानने के लिए कि यह टाल प्योर टाल है कि हाइब्रिड टाल है. तो देखें कैसे पहचाना. अब इन्होंने इस प्लांट को, इसको कहते हैं P1 जनरेशन. P1 आपको मालूम है, पेरेंटल जनरेशन. और इसको कहते हैं F1 जनरेशन, F1. अब देखिए, अब कैसे जानेंगे कि प्योर है कि हाइब्रिड? इसके लिए मेंडल ने क्या किया, इस प्लांट को जो आया था इसका क्रॉस करा दिया पेरेंटल रिसेसिव प्लांट से. दिस इज डोमिनेंट प्लांट, टाल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, देन रिसेसिव. दैट दे क्रॉस दीज प्लांट विथ रिसेसिव पेरेंटल प्लांट. इसका क्रॉस इससे करा दिया. देखिए टेस्ट क्रॉस, उसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं. इफ F1 जनरेशन, इफ वी क्रॉस द F1 जनरेशन प्लांट टू द रिसेसिव पेरेंटल प्लांट, दैट क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. ध्यान से देखिए आप,
कन्फ्यूजन ना हो टेस्ट क्रास। और क्यों टेस्ट कहते हैं? क्योंकि इसी से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ये टाल है कि ड्वार्फ है। अब देखिए इसका क्रॉस कराएं, हाइब्रिड प्लांट का मिटा रहे हैं, देखिए आप इसको ले लेते हैं, क्रॉस कराते हैं इससे। देखिए ये टाल प्लांट, टाल जिसको आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, टाल प्लांट क्या था ये? टी और टी। क्रॉस कराएंगे जो है ड्वार्फ प्लांट से, ड्वार्फ प्लांट। ये पेरेंटल प्लांट है, ये तो F1 प्लांट और यह पेरेंटल प्लांट। ड्वार्फ क्या है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखिए हम दिखा रहे हैं क्या? टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। देखिए आप तो इसको क्रॉस कराएंगे, दो तरह गैमिट बनेंगे, गैमिट। देखिए एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, क्या कहेंगे आप इसको? गैमिट। यहाँ क्या दो बनेंगे? दो तरह गैमिट बनेंगे, एक स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखिए अब इसको देखो, मान लीजिए इसका इससे फर्टिलाइजेशन हुआ हो, इस गैमिट का फ्यूजन ऑफ गैमिट, फर्टिलाइजेशन, तो प्लांट कैसा हुआ? टॉल। या मे भी पॉसिबिलिटी इसका इससे हो गया हो, या मे भी पॉसिबिलिटी इसका इससे हो गया हो। या मे भी पॉसिबिलिटी इसका इससे हो गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ? इसमें आउट ऑफ 4 2 टॉल और 2 ड्वार्फ। इट मीन्स 50%, 50% tall plant and 50% dwarf, 50% tall plant and 50% dwarf plant. The ratio is that is 50-50. अब देखिए आप क्या हुआ, इससे हमने तो लिया था टाल प्लांट को, इसी को हमने टेस्ट कर दिया कि टाल और ड्वार्फ का रेशियो क्या आ गया? 50-50 का। इसका मतलब ड्वार्फनेस भी है, ये तो सब प्लांट टाल थे। इसको हमने किससे कराया? पेरेंटल जनरेशन के किस प्लांट से? रिसेसिव प्लांट से कराया है। यह देखिए क्या F1 जनरेशन का प्लांट है, कहाँ का है? F1 का, F1 प्लांट है। ये कौन है? P1 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन का रिसेसिव प्लांट है। तब देखिए जब इसी क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर ड्वार्फ आ गया टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अगर ये ड्वार्फ आ गया तो इसका मतलब है 50-50% आएगा, ये प्लांट प्योर नहीं था, हाइब्रिड टाल था। क्यों? कि प्योर टाल अगर होता यह, तो यह अगर प्योर टाल होता तो सभी टाल प्लांट आ जाते, एक भी ड्वार्फ नहीं आता। देखिए टेस्ट कैसे कर दिया हमने, इसमें 50% ड्वार्फ आया और 50% टाल आया। यस, इससे प्रूफ क्या हो गया? यह प्लांट जो F1 जनरेशन का है वह प्योर नहीं था, हाइब्रिड टाल था, यानी कि होमोजाइगस नहीं था, हेटेरोजाइगस था। अगर ये होमोजाइगस होता, ऐसे क्रॉस कराते आप, तो क्या आता? आल प्लांट आल टाल। आप देखते हो कैपिटल टी और स्मॉल टी कराते हो तो आल प्लांट आल टाल। इससे हमने टेस्ट कर दिया क्या? कि यह प्लांट प्योर नहीं है, हाइब्रिड टाल है। इसी क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इफ वी क्रॉस F1 जनरेशन प्लांट to the parental generation recessive plant, then that cross is called test cross. We go to back, that is F1 to parental, that is called back cross also. All test cross are back cross. All test cross are back cross because the F1 generation plant is crossed with the parental generation recessive plant. We go again back, so this is called back cross. तो आप क्या लिखोगे इसको? All test cross are back cross. एक हमने आपको सेंटेंस दिया, all test cross are back cross. All test cross are back cross. बैक क्रॉस, जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं सब बैक क्रॉस होते हैं। लेकिन बट नो ऑल बैक क्रॉस, नो ऑल बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इसका क्या मतलब हुआ देखा जाए? लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम F1 जनरेशन के प्लांट को
पेरेंटल जनरेशन के डोमिनेंट प्लांट से क्रॉस करा देंगे तो अभी बैक क्रॉस ही होगा, लेकिन टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। क्यों टेस्ट नहीं कर पाएंगे? बैक तो वो भी होगा। इफ वी क्रॉस F1 जनरेशन प्लांट टू द पेरेंटल जनरेशन डोमिनेंट प्लांट, देन आल्सो ए बैक क्रॉस, बट दिस बैक क्रॉस इज नो टेस्ट क्रॉस। कैसे देखें आप, कैसे नहीं होगा ये? देखिए फिर आपको दिखाएं, पेरेंटल जनरेशन कैपिटल टी क्रॉस कराइए स्मॉल टी P1 जनरेशन। आप देखिए ध्यान से, अब इसको क्रॉस कराया तो 2 तरह गैमीट बने। आप पूरे कितने गैमीट बनेंगे सर? ऑल प्लांट टॉल, ऑल प्लांट टॉल, ऑल प्लांट कौन जनरेशन? F1। अब देखिए इसका क्रॉस हम इससे करा दें, F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस अगर हम इससे करा देंगे पेरेंटल जनरेशन के किस प्लांट से? डोमिनेंट प्लांट, तो इसको कहेंगे बैक क्रॉस बट नो टेस्ट क्रॉस। इसको हम अगर क्रॉस कराए किससे? देखिए इसको F1 को कैपिटल T क्रॉस विथ कैपिटल टी, इससे अगर आपने क्रॉस कराया तो इसको क्या कहोगे आप? बैक क्रॉस, बट इट इज नो टेस्ट क्रॉस। क्योंकि टेस्ट क्यों नहीं होगा? ये आप इससे आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, सभी प्लांट टाल आ जाएंगे। करके आप देख लो, बैक क्रॉस तो हुआ लेकिन टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि दो तरह की गैमीट बनेंगे कैपिटल T, 2 तरह के गैमीट बनेंगे कैपिटल टी। क्रॉस करके देखो आप, सभी टाल आएंगे फिनोटिपिकली। देखिए सभी टाल हो गए। देखिए मिला के आप टेस्ट नहीं कर पाओगे कि यह जो है हाइब्रिड था कि प्योर था। तो बैक क्रॉस तो हुआ लेकिन ये टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। अगर इसका इससे करा दोगे यही तो बैक तो ये भी हुआ लेकिन टेस्ट क्रॉस हुआ, क्योंकि इससे हम पता लगा लेते हैं 50% आ जाता है, 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। यह आपको यही सेंटेंस था कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस but no all back cross are the test cross. No all test cross are back cross but no all back cross are test cross. So these are the test cross and back cross by which we can identify the any plant, dominant, any plant, homozygous or heterozygous, pure or hybrid can be identified with the help of test cross. So these are the inheritance of one gene and by which we can identify टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। कभी कभी आप डिफरेंस पूछता तो आप डिफरेंस कर दो, यही डिफरेंस है। जब F1 के प्लांट को पेरेंटल प्लांट के डोमिनेंट प्लांट से कराएंगे तो यह बैक क्रॉस होगा, यही जो होगा उससे करा देंगे रिसेसिव से तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। देखिए क्यों टेस्ट नहीं हो पाएगा? सभी टाल आ जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो हाइब्रिड है कि प्योर है? दीज आर द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। सेकेंड थिंग, फर्स्ट मेंडल्स लॉ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। पर सुनिए है क्या लॉ? अकॉर्डिंग टू मेंडल दैट इज द इफ वी क्रॉस वन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर then F1 generation only one character appear. But if we self cross the F1 generation plant, then the F2 generation there are, that is the phenotypically 2 types of plant. That is the both character appear again, tall and dwarf. Any two both character, dominant and recessive character appear in phenotypic ratio 3:1. एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। देखिए आप क्रॉस करा के दिखाएं आपको। फिर एग्जाम्पल देखिए, टाल प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ प्लांट। चाहे आप कैपिटल टी टाल के लिए आप
ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। F1 जनरेशन आप जान रहे यहाँ तक, कैपिटल टी। ऑल प्लांट टाल कौन जनरेशन है? F1 हो गया। अब इसको सेल्फ क्लास करा दीजिए टी और टी को। कैसे करा देंगे? फिर से आप देखें 4 टाइप के प्लांट आ जाएंगे इसमें। देखिए क्या बनेगा, एक तो बनेगा कैपिटल टी, दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फोर्थ बनेगा स्मॉल टी। ये है F1, तो ये है F2 जनरेशन। देखिए अब देखिए यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए यहाँ F1 जनरेशन को आपने क्रॉस कराया, इसको सेल्फ क्रॉस करा दिया, तो देख रहे हैं क्या कि कितने ये भी हो गया टॉल, ए भी टॉल, तो 3 टॉल हो गए। 3 टॉल आउट ऑफ 4 3 टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। तो क्या रेशियो आया? फिनोटिपिक रेशियो क्या आया आपका? फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1। और जीनोटिपिक देखेंगे क्या? तो 1 प्योर टाल, 2 हाइब्रिड टाल और 1 प्योर ड्वार्फ। जीनोटिपिक जीन देखें तब क्या कहेंगे? जीनोटिपिक रेशियो। इसमें क्या आएगा? 1:2:1। देखिए 1 प्योर टाल, देखिए 2 हाइब्रिड टाल और 1 प्योर ड्वार्फ। That is the genotypic ratio 1:2:1. These are that is you see here. You cross the first generation plant, everyone tall. तो यहाँ ड्वार्फ कहाँ से आ गया? देखिए आपने क्रॉस कराया था टॉल से, F1 जनरेशन के प्लांट को सेल्फ क्रॉसिंग कराया, अब सेल्फ रिप्रोडक्शन कराया, तो देखा कि इसमें ड्वार्फ कहाँ से तब आ गया। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल, इफ वी क्रॉस द F1 जनरेशन प्लांट, all plant are tall, you see here, but in F2 generation the tall and dwarf ratio, phenotypic ratio 3:1. It means the dwarfness, the alleles of dwarfness present with the tallness. उन्होंने कहा क्या कि ड्वार्फ टॉल के साथ ड्वार्फ का एलिल्स था, लेकिन गैमिट फॉर्मेशन के समय यह अलग हो गया, यानी सेग्रीगेट हो गया। ड्वार्फनेस का कैरेक्टर टालनेस के साथ था, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस को उसने ख़त्म नहीं किया है, अपने को मिलाया नहीं उसमें है, बल्कि उसी के साथ सप्रेस रहा है। और ज्यों ही गैमिट फॉर्मेशन हुआ है वो सेग्रीगेट हो गया। सेग्रीगेट माने अलग हो गया, अलग होकर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया। यानी कि यह गैमिट फॉर्मेशन के समय साथ साथ रहते हैं, लेकिन अपने आइडेंटिटी को खोते नहीं हैं, बल्कि सप्रेस किए होते हैं। जो भी कैरेक्टर हैं एक साथ रहते हैं, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव रहेगा, लेकिन अपनी क्वालिटी को नहीं खोएगा, बल्कि उसी के साथ सप्रेस कंडीशन में होगा। जब मौका मिलेगा तो एक्सप्रेस हो जाएगा। किसका अर्थ क्या निकला कि गैमिट प्योर होता है। इसलिए इस रूल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमिट, प्योरिटी ऑफ गैमिट, प्योरिटी ऑफ गैमिट। गैमिट ऑलवेज प्योर, नो ब्लेंडिंग इन द गैमिट। इसको दूसरे नाम क्यों प्योरिटी ऑफ गैमिट आपको दिखाऊं, यही देखो आप, फिर आपको दिखाते हैं कैसे हुआ था। यही आप देखिए, देखिए क्या है, ये टॉल प्लांट है, देखिए हाइब्रिड टॉल है, आपने टॉल लिया, टॉल, और इसको क्रॉस करा सेल्फ क्रॉस, फिर टॉल से। ये टॉल क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए गैमिट फॉर्मेशन, ये प्लांट देखने में कैसा था? टॉल ही था, फिर टॉल ही था। अब देखेंगे तो 2 गैमिट बने, एक टी बना, एक स्मॉल टी बना, दूसरा गैमिट एक टी बना, एक स्मॉल टी बना। अब क्रॉस कराइए, इसमें देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी। देखिए हम आसान तरीका आपको बता रहे हैं, इसका क्रॉस इससे करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इससे करा दीजिए, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए इसमें क्या करा दीजिए, स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखिए अब देखिए गैमिट, ये है क्या? गैमिट। गैमिट देखिए प्योर हो गया। इसके साथ टाल के साथ ड्वार्फनेस था, लेकिन अपने कैरेक्टर को खोया नहीं। देखिए क्या है, इसके साथ पड़ा रहा, और जब मौका मिला, यानी गैमिट फॉर्मेशन के समय अलग हो गया, सेग्रीगेट होना। इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर प्योरिटी ऑफ द गैमिट। गैमिट इज ऑलवेज प्योर, नो ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग।
वन कैरेक्टर लिव टुगेदर, टू कैरेक्टर लिव टुगेदर, बट एट दैट टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन दे आर सेग्रीगेट टू ईच अदर। देखो अलग हो गया, ये नहीं कि इसके साथ रह के अपनी क्वालिटी को इसने ड्वार्फनेस ने खो दिया है या ख़त्म कर दिया है, ऐसा नहीं है। साथ है, केवल सप्रेस है, दबा हुआ है। जब मौका मिला गैमिट में अलग हो गया। इधर इसका सेकंड नाम लिखा था प्योरिटी। कभी भी पूछता क्वेश्चन, व्हाई इट इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ द गैमिट? Mendel's law of segregation, what is the reason that that is the purity of the gamete? So it is gamete are always pure, and at the time of gamete formation these characters are segregate and they develop, that is the ratio, the genotypic ratio. How many? A phenotypic ratio 3:1, a genotypic ratio 1:2:1। तो आपको रिजल्ट आपको देखो आ गया, जीनोटिपिक रेशियो आ गया 3:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो आ गया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आ गया क्या 1:2:1। अब देखिए दो आपको मिल गए। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया 3:1 और जीनोटिपिक क्या आ गया जीनोटिपिक रेशियो। जब जीनेटिक का इंस्ट्रक्शन देखोगे आप तो क्या आ गया 1:2:1, 1 प्योर टाल, 2 हाइब्रिड टाल, 1 ड्वार्फ। यहाँ बोथ आर दैट इज द टाल, दैट इज द फिनोटिपिक। अब बाहर से देखोगे तो दोनों जो रेशियो क्या हो गए, तीन जुड़ गई। ये तीनों क्या थे, टॉल थे, एक ड्वार्फ था। ये आ गया रेशियो आपको। जितने भी आउट ऑफ प्लांट और जितने भी आपने क्रॉस कराया उसमें आपने देखा क्या कि रेशियो आएगा यही 1:2:1। ये है क्या, ये बाइनाम मैथ पढ़े होंगे तो आप बाइनामियल एक्सप्रेशन है। बाइनामियल एक्सप्रेशन ax + by होल का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। सेम उसी का एक्सप्रेशन है ये। बाइनामियल एक्सप्रेशन आप करते हो ax + by होल का स्क्वायर करोगे वही है। जैसे आप देखो, आपको दिखाएं कैसे मैथ से क्योंकि मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली उन्होंने देखा था। मेंडल ने जो अपने रूल बनाए थे ये स्टैटिक्स की भी जानकारी थी उनको, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उन्हें डाटा कलेक्शन दिया था। तो बाइनामियल एक्सप्रेशन ही है। जब आप कैपिटल टी से गैमिट बनाते हो दो तरह के गैमिट बनते हैं, एक टी बनता है, एक स्मॉल टी बनता है। अब एक टी का मतलब जितने थे उसके आधे कैपिटल टी होते हैं, आधे स्मॉल टी, यानी हाफ, पूरे का हाफ कैपिटल टी होगा और पूरे का हाफ क्या होगा स्मॉल टी होगा। अब इसी को आप देखो, इसी का बाइनामियल एक्सप्रेशन कर दो, आप आ जाएगा। जैसे आप कर दो क्या इसको 1/2 टी प्लस 1/2 हाफ टी होल का स्क्वायर कर दो, यही बाइनामियल एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप करके देख लो, या इसी को आप क्या कर दो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, सेम थिंग आएगा स्क्वायर का मतलब। जैसे आप करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसी को 2 बार कर दो, देखो अभी हो जाएगा वही 1/2। देखिए यहाँ 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 हाफ टी। एक में कर दो, फिर इसको कर दो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 हाफ टी, मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा क्या आपका वही आ जाएगा कि दैट इज द कैपिटल टी कितना आ जाएगा 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 आ जाएगा क्या स्मॉल टी करके आप देख लो, यही आ जाएगा। 1/4 इस मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को तो ये आ जाएगा 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4 स्मॉल टी। दिस इज द बाइनॉमियल एक्सप्रेशंस ऑफ मैथमेटिकली। वही रूल था ये, उसी के आधार पर रिजल्ट आता है। द जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, 1:2:1 आया। या फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा आपका वो 3:1। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस बता दिए। अब ये सब 1 जीन मैंने दिखा था, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इफ वी क्रॉस 1 टाइम more than 1 character or 2 character, then it is called dihybrid cross. If we cross 1 time 3 character, then trihybrid cross. तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो या नेक्स्ट देख, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको मैं बार बार कहता रहा हूँ, आपको उसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो नहीं समझ में आता या जैसा चाहते हो या क्वेश्चन आपका हो हम सॉल्व करके देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।